اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ یہ کہانی اور کہانی میں موجود تمام کردار بالکل سچے ہیں، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کہانی کا نام ہے سچی محبت۔ نگینا 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ سمیرا نگینا کی ہم جماعت اور ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ دونوں نے گاؤں کے ایک ہی اسکول سے اکٹھے تعلیم حاصل کی اور اب ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ اسی وجہ سے ان میں بہت ہی گہری دوستی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر بھی اکثر آیا جایا کرتی۔ نگینا کا کوئی بہن بھائی نہ تھا اور اس کی امی بھی فوت ہو گئی تھی۔ گھر میں صرف ایک باپ تھا۔ نگینا کی جب سے امی فوت ہوئی وہ سمیرا کے گھر زیادہ جانے لگی۔ گھر میں اکیلی اس کا دل نہ لگتا۔ اس کے ابا کام کے سلسلہ میں سارا دن باہر گزارتے، شام کو واپس لوٹتے۔ نگینا اپنی ہر بات سمیرا سے شیئر کیا کرتی۔ سمیرا بھی بہت اچھی لڑکی تھی۔ نگینا کی 3 پھوپھیاں تھیں، کبھی کبھی اس کے گھر آ جاتی۔ نگینا ان سے اکثر کہتی کہ اب امی نہیں رہیں، آپ میں سے کوئی ایک یہاں زیادہ دیر رک جایا کرے، لیکن وہ کہتی کہ ان کو اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اس لیے وہ یہاں زیادہ دن نہیں رک سکتی۔ نگینا بہت ہی سگڑ تھی۔ سمیرا بھی نگینا کو بہت پسند کرتی تھی۔ اب ان میں اور گہری دوستی ہوتی گئی۔ سمیرا کے اور بہن بھائی بھی تھے۔ اس کا سب سے بڑا بھائی تیمور تھا جو کہ کراچی کام کرتا تھا۔ وہ کسی تہوار یا غمی خوشی میں گھر آتا۔ ان دنوں وہ بیمار تھا، اس لیے چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ نگینا اس وجہ سے سمیرا کے گھر جانے سے کترانے لگی، کیونکہ سمیرا کے باقی سب بھائی نگینا سے چھوٹے تھے، اس لیے نگینا ان سے نہیں شرماتی تھی۔ انہیں بھی اپنے سے چھوٹا سمجھ کر بات کرنے سے نہ گھبراتی۔ اکثر ان سے کوئی چیز منگوانی ہوتی تو وہ اس کے بھائیوں سے منگوا لیتی۔ سمیرا کی ایک اور بہن بھی تھی جو بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ نگینا بھی اس سے بہت پیار کرتی، اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتی۔ نگینا اتوار والے دن سمیرا کے گھر ضرور جایا کرتی، لیکن اس دفعہ وہ تیمور کی وجہ سے سمیرا کے گھر نہ گئی تو سمیرا کی امی نے فکر مند ہوتے ہوئے سمیرا کو بولا کہ بیٹا نگینا آج کیوں نہیں آئی، جا کر پتہ کرو کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو۔ سمیرا کی امی ابو نگینا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب سے اس کی امی فوت ہو گئی تو وہ زیادہ خیال رکھنے لگے۔ وہ ویسے بھی گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس وجہ سے سمیرا کی امی اس سے اکثر کہتی کہ تم نگینا کا زیادہ خیال رکھا کرو، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں اور اس کی امی بھی فوت ہو گئی ہیں۔ سمیرا کی امی اسی گاؤں کی بیٹی تھی جس گاؤں میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ سمیرا کی امی کو نگینا کی پھوپھیوں کے بارے میں کافی کچھ معلوم تھا، ایسا کچھ جو نگینا کو معلوم نہ تھا۔ وہ اکثر نگینا کی پھوپھیوں کا جب بھی ذکر ہوتا تو غصے میں آ جاتی۔ نگینا جب بھی ان سے یہ وجہ پوچھتی تو وہ بات کو ٹال مٹول دیتی۔ سمیرا جب نگینا کے گھر گئی تو اس نے دیکھا کہ نگینا گھر کے صحن میں اداس بیٹھی ہے۔ سمیرا کو دیکھ کر نگینا کے چہرے پر رونق آ گئی۔ نگینا خوشی سے سمیرا کی طرف بڑھی اور بولی، شکر ہے کہ تم آ گئی، میں بہت بور ہو رہی تھی۔ سمیرا نے بولا کہ ہاں میں تو آ گئی، لیکن تم کیوں نہیں آئی؟ امی کافی فکر کر رہی تھی تمہارے بارے میں سوچ کر۔ نگینا بولی، مجھے تمہارے بھائی سے شرم آتی ہے اور تھوڑا تھوڑا ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے میں تمہارے گھر نہیں آئی۔ یہ بات سنتے ہی سمیرا ہنسنا شروع ہو گئی۔ وہ بولی، میرا بھائی تو بہت اچھا ہے، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، تم کیوں اس سے ڈرتی ہو؟ وہ بولی، شاید، مجھے پتا نہیں۔ پھر سمیرا اور نگینا آپس میں باتیں کرنے لگ گئیں تو سمیرا نے بہت اصرار کیا کہ نگینا اس کے ساتھ گھر چلے، لیکن نگینا نے کہا کہ اب ٹائم کافی ہو چکا ہے، شام ہونے والی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ گئی تو پیچھے سے اس کے ابا گھر میں آ کر بہت ناراض ہوں گے، اس لیے اس نے کہا کہ وہ پھر آئے گی۔ سمیرا نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ گھر واپس چلتی ہے۔ نگینا نے کہا کہ تم اپنی امی کو میرا سلام دینا۔ سمیرا
घर जाते ही अपनी अम्मी को सारी बात बताने लगी, इस बात से अनजान कि उसका बड़ा भाई तैमूर पीछे सारी बात सुन रहा था। सुमेरा ने जब बात खत्म कर ली तो उसकी अम्मी ने उसको पीछे मुड़कर देखने के लिए कहा। जब सुमेरा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका भाई तैमूर खड़ा सारी बात सुन रहा था। तैमूर बोला कि तुम्हारी सहेली को अगर मुझसे मसला है तो उसे कहना कि जिस वक्त उसने घर आना होता है उस वक्त मैं घर से बाहर चला जाया करूँगा। सुमेरा बोली, नहीं भाई, वो तो ऐसे ही कह रही थी, मैं उसे समझाऊंगी, वो बहुत मासूम है। अगले दिन जब सुमेरा कॉलेज गई तो उसने नगीना से बोला कि तैमूर से मत डरा करे, वो थोड़ी ही छुट्टी आया है, उसने वापस चले जाना है। थोड़े ही दिनों में उनकी 12वीं जमात की पढ़ाई खत्म होने वाली थी और उनके इम्तिहानात शुरू होने वाले थे। नगीना बहुत परेशान रहती, ये सोच सोच कर कि वो 12वीं जमात के बाद क्या करेगी। जब उसने अपनी परेशानी के बारे में सुमेरा से बात की तो सुमेरा ने कहा कि वो ऐसा क्यों सोचती है। सुमेरा ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच कर रखा होगा, तुम फिक्रमंद क्यों होती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई। नगीना और सुमेरा ने कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट रखा हुआ था। दोनों को इसकी तैयारी में थोड़ी दुश्वारी हो रही थी। नगीना ने बहुत ही परेशान होते हुए सुमेरा से कहा कि अब वो दोनों क्या करेंगी, छुट्टियां भी हो गई, वो किसी से मदद भी नहीं ले सकती। तो सुमेरा ने कहा कि तैमूर भाई बहुत अच्छा कंप्यूटर जानते हैं, वो हमें पढ़ा दिया करेंगे। नगीना ने डरते हुए बोला कि तुम अच्छी तरह जानती हो, मुझे उनसे डर लगता है और वो बहुत सख्त भी लगती हैं, मैं कैसे उनसे पढ़ सकती हूँ। सुमेरा ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा वहम है, इस तरह तुम उन्हें जान जाओगी, मेरे भाई बहुत ही अच्छी आदत के मालिक हैं। नगीना ने कहा कि तुम कहती थी कि वो वापस जा रहे हैं। सुमेरा ने कहा कि नहीं, अब रमज़ान है और रमज़ान के बाद ईद आ रही है, इसलिए अम्मी ने भाई से कहा है कि वो ईद के बाद ही जाए, इसलिए भाई भी रुक गए क्योंकि इस दफ़ा वो काफ़ी देर के बाद आए थे, इसलिए उनकी छुट्टी भी थी। नगीना ने कहा कि ठीक है, वो अपने अब्बा से बात करेगी, फिर ट्यूशन पढ़ने आएगी। उसके बाद नगीना रोजाना सुमेरा के घर जाने लगी और तैमूर से ट्यूशन पढ़ने लगी। सुमेरा के छोटे बहन भाई अपने ननिहाल गर्मियों की छुट्टियों की वजह से चले गए। नगीना ने कोई किताब मंगवानी थी और कुछ जरूरी चीजें। इसने पहले अपने अब्बू से कहा। उसके अब्बू ने कहा कि तुम रोज तो जाती हो अपनी सहेली के घर, उसके भाइयों से मंगवा तो लेती थी पहले, अब भी मंगवा लो बेटा, मेरे पास टाइम नहीं होता, तुम जानती तो हो। नगीना ने कहा ठीक है। उसके बाद वो फिर सुमेरा के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए गई तो उसने सुमेरा को बोला कि उसने कुछ चीजें मंगवानी है। सुमेरा ने बोला कि तुम भाई तैमूर को बोलो, वो तुम्हें चीजें ला देंगे। नगीना ने कहा कि मैं कैसे उन्हें बोल सकती हूँ। सुमेरा ने कहा कि अब तुम उनसे पढ़ती भी हो, अभी भी तुम उनसे बात करते हुए घबराती हो। नगीना ने काफी हिम्मत करते हुए उस कमरे की तरफ देखा जिस कमरे में तैमूर था। सुमेरा ने बोला डरो मत और जाओ। नगीना जब कमरे में दाखिल हुई तो तैमूर कानों में हेडफोन लगाए आराम से आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तैमूर को मुखातब करके नगीना ने कहा कि मुझे कुछ चीजें मंगवानी हैं। तैमूर ने नगीना की आवाज ना सुनी क्योंकि उसके कानों में हेडफोन था, तो शायद उसकी आवाज उसके कानों तक ना गई। नगीना को समझ नहीं आई कि वो उसको किस तरह बुलाए। नगीना ने हिम्मत करते हुए अपने हाथ में मौजूद मोबाइल से तैमूर का हाथ हिलाया। तैमूर ने जब आंखें खोली तो अचानक से चौंक गया। उसने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नगीना ने जल्दी से पर्ची तैमूर को थमा दी और बोली कि मुझे ये चीजें मंगवानी हैं, क्या आप ला देंगे। तैमूर ने मुस्कुराते हुए बोला ठीक है। इसके बाद तैमूर चला गया और थोड़ी देर में ही चीजें ले आया। आहिस्ता आहिस्ता तैमूर और नगीना में बेतकल्फी बढ़ने लगी। नगीना अब कोई भी बात तैमूर से बिला झिझक कर लेती। तैमूर भी नगीना की तरफ काफी मुतवज्जो रहने लगा। एक रोज नगीना को बुखार हो गया और वो उस रोज पढ़ने के लिए ना गई। तैमूर नगीना की गैर हाजिरी को देखकर बहुत बेचैन हो गया। उसने सुमेरा को बोला कि जाकर देखो कि नगीना क्यों नहीं आई। सुमेरा ने कहा कि कल उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, शायद आज वो इस वजह से नहीं आई। तैमूर ने कहा कि नहीं, तुम जाओ और जाकर पता करो कि नगीना क्यों नहीं आई। सुमेरा और उसकी अम्मी ने
तैमूर की बेचैनी को देखकर तैमूर से कहा कि क्या बात है, उसे बहुत नगीना की फिक्र हो रही है। तैमूर ने घबराते हुए कहा कि दरअसल वो मुझसे ट्यूशन पढ़ती है, इस वजह से मैं उसकी पढ़ाई को लेकर परेशान हूँ। सुमेरा की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, भला माँ से भी कोई कुछ छुपा सकता है। उसके बाद ईद करीब आ गई तो जो कुछ सुमेरा के लिए तैमूर ईदी में लाया वही सब कुछ नगीना के लिए भी लेकर आया और उसने सुमेरा से कहा कि वो ये सारी चीजें नगीना को जाकर दे ताकि वो ईद में इस्तेमाल कर सके। तैमूर ने कहा कि उस बेचारी को किसने चीजें लाकर देनी है। तब सुमेरा और उसकी अम्मी को यकीन हो गया कि तैमूर के दिल में नगीना के लिए पसंदीदगी के जज्बात उभर रहे हैं। इस वजह से सुमेरा ने कहा कि भाई तुम भी मेरे साथ आओ। तैमूर ने कहा कि वो कैसे जा सकता है। सुमेरा ने काफी इस्रार किया और वो जबरदस्ती तैमूर को साथ ले गई। सुमेरा ने कहा कि नगीना के घर में दिन के टाइम कोई भी नहीं होता, इसलिए तुम घबराओ मत। नगीना ने जब सुमेरा और तैमूर को अपने घर में देखा तो वो हैरान भी रह गई और साथ खुश भी हुई। नगीना ने सुमेरा और तैमूर को बैठने के लिए कहा। तैमूर ने कहा कि नहीं, मुझे जल्दी है, मुझे कोई काम है, इसलिए मैं जाता हूँ। सुमेरा ने तैमूर का हाथ पकड़ते हुए कहा कि नहीं भाई, 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाती हूँ। सुमेरा ने जल्दी से नगीना की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे शाह पर थमा दिया। इससे पहले कि नगीना कुछ बोलती वो दोनों घर से बाहर निकल गए। इसके बाद ईद पर नगीना सुमेरा के घर गई। नगीना ने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे और सारी वो ज्वेलरी तैमूर ने जो उसको गिफ्ट की थी वो भी डाली। नगीना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नगीना कुछ मीठा बनाकर लेकर गई तो सुमेरा ने कहा कि तुम ये मीठा खुद भाई को कमरे में दे आओ। सुमेरा चाहती थी कि उसके भाई और नगीना के दरमियान बातचीत हो, क्योंकि ईद के फौरन बाद तैमूर ने कराची वापस चले जाना था। नगीना अब चूँकि काफी फ्री हो गई थी, इसलिए वो बेतकल्फी से तैमूर के कमरे में दाखिल हुई, जहाँ तैमूर बैठा शायद उसी का ही इंतजार कर रहा था। तैमूर नगीना को देखकर बेसाख्ता बोला कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। नगीना शर्माती हुई तैमूर की तरफ बढ़ी और उसको मीठा खाने के लिए दिया। तैमूर बोला कि ये तुम खुद बनाकर लेके आई हो। नगीना ने कहा जी। इसके बाद तैमूर ने नगीना को उधर ही बैठने के लिए कहा। नगीना बैठ गई। उसने बोला कि अब तुम 12वीं जमात खत्म होने के बाद क्या करोगी। नगीना बोली कि उसने क्या करना है, बाकी की तालीम हासिल करने के लिए दूर शहर जाना पड़ेगा, जो कि मैं जा नहीं सकती, इसलिए अब घर के काम ही करूंगी और घर में ही रहूंगी। तैमूर ने कहा अच्छी बात है, हम भी अब सुमेरा की शादी कर देंगे। सुमेरा की मंगनी उसके खाला के घर हुई है। नगीना चौंक कर बोली अच्छा। इतने में सुमेरा कमरे में दाखिल हुई, ये सोचते हुए कि शायद उसके भाई ने नगीना से कोई बात कर ली हो। नगीना आज वाकई बहुत प्यारी लग रही हो, खास तौर पर तुमने ये जो ज्वेलरी डाली है तुम पर बहुत जच रही है। ये कहते हुए सुमेरा ने अपने भाई की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही थी नगीना को देखकर। नगीना बोली कि ऐसी भी कोई बात नहीं। फिर सुमेरा बोली कि अब भाई ने चले जाना है और शायद वो जल्दी ना आए, इसलिए तुम भाई से उनका मोबाइल नंबर ले लो ताकि जब भी तुम्हें कोई बात करनी हो तो उनसे आसानी से कर सको। सुमेरा की ये बात सुनते ही उसके भाई ने कहा हाँ, सुमेरा बिल्कुल ठीक कह रही है। सुमेरा असल में एक बहाने से दोनों के दरमियान रायबता कायम करना चाहती थी। नगीना ने भी इस बात में सर हिला दिया और फिर तैमूर ने अपना नंबर नगीना को दिया। इसके बाद नगीना थोड़ी देर और रुकी और अपने घर चली गई। नगीना बहुत ही उदास हो गई जब उसने ये सुना कि अब तैमूर वापस चला जाएगा। नगीना भी तैमूर को बहुत पसंद करने लग गई थी। नगीना जब भी तैमूर के पास होती खुद को बहुत महफूज और खुश महसूस करती। जिस दिन तैमूर ने कराची जाना था, नगीना तैमूर के घर गई। नगीना अब बिला झिझक तैमूर के कमरे में सीधी चली जाती थी। नगीना के हाथ में कोई चीज पकड़ी हुई थी। उसने जल्दी से तैमूर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं, इसलिए मैं जल्दी में मीठा बनाकर ले आई, क्योंकि आपको बहुत मीठा पसंद है ना। तैमूर बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। तैमूर नगीना के जज्बात समझ गया और उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि नगीना भी अब उसे पसंद करने लगी है। इसलिए तैमूर ने मौका का फायदा उठाते हुए नगीना को बोला कि वो
उसे बहुत याद किया करेगा कराची जाकर। नगीना ने उदास लहजे में बोला कि वो भी उसे बहुत याद किया करेगी। फिर नगीना अपने घर चली गई। तैमूर ने कराची जाने के ठीक 2 दिन बाद नगीना को कॉल की। नगीना ने दूसरी ही बेल पर फोन उठा लिया। नगीना तो जैसे तैमूर की कॉल का ही इंतजार कर रही थी। नगीना का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी धड़कन सही महसूस हो रही थी। नगीना ने तड़पते हुए हेलो कहा और दूसरी तरफ से बहुत ही मायूस आवाज तैमूर की आई। नगीना फटाफट बोली कि आप कैसे हैं? तब तैमूर ने बोला कि नहीं, पहले तुम बताओ तुम कैसी हो। नगीना ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। तब तैमूर ने बोला कि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। फिर नगीना बोली कि आप कराची ना जाते। तैमूर बोला कि तुम बहुत मासूम और भोली हो, तुम नहीं जानती कि मैंने ये कैरियर कैसे बनाया है। मैं इस तरह ज्यादा छुट्टियां नहीं कर सकता था और ना ही सब कुछ छोड़ सकता हूँ। यूं ही दिन गुजरते रहे और आहिस्ता आहिस्ता नगीना और तैमूर में रोजाना बात होने लगी। 6 माह बाद तैमूर की बहन सुमेरा की भी शादी थी। कुछ अरसे बाद तैमूर ने नगीना से कहा कि चूंकि अब सुमेरा की शादी के दिन भी करीब आ रहे हैं, नगीना अपने अब्बू से बात करे। अगर वो हमारे रिश्ते पर राजी हैं तो मैं अपने अम्मी अब्बू को रिश्ते के लिए भेजता हूँ ताकि हमारी भी सुमेरा के साथ शादी हो जाए। लेकिन नगीना बात करने से घबरा रही थी कि वो अपने बाप से कैसे बात कर सकती है। अगर उसकी अम्मी जिंदा होती तो इससे बात कर लेती। नगीना ने बोला कि इसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए कि वो किस तरह अपने बाप तक ये बात पहुंचाए। इन्हीं दिनों में नगीना की बड़ी फुप्पो, जिसका नाम रक्षंदा था, वो उनके घर आई थी। नगीना की वैसे तो तीनों पुप्पियां ही बहुत शातिर थीं, लेकिन बड़ी पुप्पो चालाक होने के साथ साथ बहुत मीठी भी थी। नगीना को उनकी चालाकियों के बारे में इतना पता न था क्योंकि ये सब उसकी माँ ने झेला था। जब उसकी माँ मरी, नगीना 8वीं जमात में थी। उसकी माँ की मौत अचानक हुई। ये भी एक राज था जो कि तैमूर की माँ जानती थी, क्योंकि तैमूर की माँ भी नगीना की माँ की सहेली रही थी। नगीना की बड़ी पुप्पो ने नोट किया कि नगीना अक्सर फोन पर बात करती है। उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि मुझे 2 दिन हो गए हैं इधर आए हुए, तुम्हारी अब वो सहेली नहीं आती। नगीना बोली, कौन सी सहेली? तो उसकी पुप्पो ने बोला कि मैं सुमेरा की बात कर रही हूँ। नगीना बोली, नहीं, उसकी शादी होने वाली है इसलिए वो नहीं आती और मैं भी अब बहुत कम जाती हूँ। उसकी पुप्पो ने कहा, अच्छा तो फोन पर फिर तुम उसी से बात करती होगी। नगीना ने घबराते हुए कहा, जी बिल्कुल। नगीना की पुप्पो को उसके रद्द-ए-अमल पर शक हुआ तो उसकी पुप्पो ने कहा, अच्छा तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वैसे अब तुम्हारी भी शादी कर देनी चाहिए, मैं तुम्हारे बाप से बात करूँगी। नगीना बोली, पुप्पो क्या आपकी नजर में कोई रिश्ता है? नगीना की पुप्पो बोली, नहीं, मेरी नजर में तो कोई रिश्ता नहीं। तुम किसी को पसंद करती हो क्या? नगीना ने सोचा कि ये वक्त अच्छा है और इसकी पुप्पो भी इसकी माँ जैसी है, इसलिए वो अपनी पुप्पो से ही बात कर लेती है। क्योंकि इसके अब्बा उसकी पुप्पियों की कोई बात नहीं टालते थे, इसलिए नगीना ने जब तैमूर से ये बात की तो तैमूर ने कहा कि ठीक है, वो अपनी पुप्पो से बात करके देख ले। उसके बाद नगीना ने जब अपनी पुप्पो से तैमूर और अपनी मोहब्बत के बारे में सारी बात की तो उसकी पुप्पो ने बड़े प्यार से सारी बात समझ ली और उसके बाद जो हुआ वो नगीना कभी सोच भी नहीं सकती थी। नगीना की पुप्पो बोली, ठीक है, तुम उन्हें बोलो कि वो रिश्ता लेकर आए 1-2 दिन के अंदर अंदर। जब तक मैं इधर हूँ मैं भाई से खुद ही बात कर लूंगी, तुम फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर नगीना की पुप्पो रक्षंदा एक चाल चल रही थी। उन्होंने अपनी दोनों बहनों को बुलाया। ये वो इसलिए नहीं कर रही थी कि उन्हें अपनी भतीजी प्यारी थी, उन्हें उसके साथ जो दौलत जानी थी वो प्यारी थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो नगीना और तैमूर का कभी रिश्ता नहीं होने देंगी। या तो वो नगीना को बदनाम कर देंगी या फिर उसे इसी तरह घर में बैठा रहने देंगी। इधर से नगीना ने तैमूर को बोला कि वो अब रिश्ते के लिए अपने अम्मी अब्बू को भेजे। जब उसने अपनी दोनों पुप्पो को देखा तो उसने अपनी बड़ी पुप्पो से कहा कि आपने इनके साथ भी सारी बात कर डाली। तो उसकी पुप्पो ने कहा, तुम हमारी इकलौती भतीजी हो, हम तुम्हारी खुशी बांटना चाहती हैं। अगले ही दिन तैमूर के घर वाले रिश्ता लेकर आ गए। नगीना बेचारी बहुत खुश थी। उसे यूं महसूस हो रहा था कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। नगीना की पुप्पो ने उसे कहा कि जब तैमूर के घर वाले कमरे में दाखिल हों तो तुम 15-20 मिनट बाद आना। नगीना चुप कर गई।
اس کے بعد انہوں نے اپنی گندی چال کی شروعات چلی۔ ادھر نگینا کی پھوپھیوں نے نگینا کے ابا کے بھی کان بھر دیے کہ تمہاری بچی کو تیمور نے ورگلایا ہے، وہ ایک نشئی ہے، کراچی میں وہ نشہ بیچتا ہے، اسی لیے تو اتنے پیسے کماتا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں کر کے اس کے باپ کا دماغ بھر دیا۔ جب تیمور کے گھر والے نگینا کے گھر رشتہ لے کر آئے تو نگینا کی پھوپھیوں نے تیمور کے گھر والوں کی بہت بے عزتی کی اور بولا کہ آپ تو ہمارے قابل ہی نہیں، آپ کیا سوچ کر آئے ہو؟ آپ کا بیٹا ایک نشئی ہے، وہ تو ہماری بیٹی کو نہیں چاہتا، اس کی دولت کو چاہتا ہے۔ جب تک نگینا کمرے میں داخل ہوئی تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نگینا نے اندر داخل ہوتے ہوئے بس تیمور کی امی کو اتنا کہتے ہوئے سنا کہ جو کچھ بھی ہے ہم سب برداشت کر لیں گے، دیکھو تم لوگوں نے نگینا کی ماں کو بھی مار دیا، اب تم اس بیچاری کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہو۔ یہ بات سنتے ہی نگینا کی تینوں پھوپھیاں سمیرا کی امی پر جھپٹ پڑی۔ اس کے بعد تیمور کے ابا کو بہت غصہ آیا اور وہ تیمور کی امی کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں سے باہر لے گئے۔ تیمور کی ماں جاتے ہوئے بہت رو رہی تھی۔ اس نے نہایت ہی حسرت بھری نگاہوں سے نگینا کی طرف دیکھا۔ نگینا کا دل بند ہو رہا تھا۔ یہ سارا عالم دیکھ کر نگینا نے اپنی تینوں پھوپھیوں کی طرف دیکھا کہ انہوں نے یہ سب کیا کر دیا۔ اتنے میں اس کی بڑی پھوپھو رخشندہ بولی کہ تمہیں ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، یہ عورت بہت ہی چلاک ہے، اس نے تمہاری ماں کا پہلے دماغ خراب کیا، اب تمہارا دماغ خراب کر رہی ہے۔ نگینا یہ سنتے ہی اپنے کمرے کی طرف دوڑی اور اپنے کمرے میں جا کر بہت زیادہ روئی۔ نگینا کا باپ اگرچہ نگینا سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن نگینا اور اس کے باپ کے درمیان بے تکلفانہ بات کبھی نہیں ہوئی، جس کا فائدہ اس کی پھوپھیوں نے اٹھایا۔ نگینا تیمور کو ساری بات بتا کر بہت روئی۔ اس کے بعد نگینا کے باپ نے نگینا سے فون بھی لے لیا۔ اب نگینا اور تیمور کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا۔ نگینا کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، کسی نے اس کی خوشیوں کو نظر لگا دی۔ اس کی پھوپھیاں یہ سارا ڈرامہ ختم کر کے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ نگینا نے بہت ہمت کر کے اس حادثے کے ٹھیک 1 ماہ بعد اپنے باپ کو بولا کہ ابا، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں پوچھا اور نہ ہی مانگا، مجھے نہیں پتا کہ میری ماں کیسے مری، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ میں آپ سے اب بھی کچھ نہیں پوچھوں گی کیونکہ میری مری ہوئی ماں مجھے واپس نہیں مل سکتی۔ آپ میری تیمور کے ساتھ شادی کر دیں، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، میں کبھی بھی آپ کی دہلیز پر آ کر نہیں بیٹھوں گی۔ تیمور بہت اچھا لڑکا ہے، آپ میری اس سے شادی کر دو۔ نگینا کے باپ نے جب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولا ٹھیک ہے، وہ تیمور کے بارے میں پہلے پتہ کروائے گا۔ نگینا نے جب یہ بات سنی تو اسے ایک امید لگی کہ شاید اب اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اس کے بعد نگینا کی بڑی پھوپھو گھر میں زیادہ چکر لگاتی تاکہ وہ ساری صورتحال کی جانچ لے سکے۔ ادھر سمیرا کی شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ تیمور شادی کی تیاریوں کے لیے گھر آیا۔ کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا بڑا بیٹا تھا، اس لیے سارے انتظامات اسے ہی دیکھنا تھے۔ نگینا کو جب یہ خبر ہوئی تو نگینا بہت ہی بے چین ہوئی تیمور کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ کافی عرصے سے ان کی آپس میں بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح تیمور کو ملے، کس طرح اس کو دیکھے گی اور کس طرح اس سے بات کرے۔ تیمور کے گھر والے اگرچہ نگینا کے ابا سے کافی ناراض تھے، لیکن ان کو نگینا سے کوئی گلہ نہ تھا۔ سمیرا نے اپنی ماں سے کہا کیا نگینا کو اس کی شادی پر نہیں بلایا جائے گا؟ سمیرا کی ماں نے کہا کہ تم سب کچھ جانتی تو ہو، اس دن کیا کچھ ہوا؟ اس کی ماں نے کہا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نگینا کی پھوپھیاں بہت ہی شاطر ہیں، وہ کبھی بھی اس کو اس گھر کی نہ بہو بنائیں گی اور نہ ہی کبھی اس کو اس گھر میں آنے دیں گی۔ اگر تم چاہتی ہو تو جا کر شادی کا کارڈ نگینا کو دے آؤ۔ سمیرا نے یہ بات سنتے ہی جلدی سے چادر اوڑھ کر نگینا کے گھر روانہ ہو گئی۔ نگینا نے جب سمیرا کو دیکھا تو وہ زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئی اور نگینا سمیرا کے گلے لگ گئی۔ نگینا نہ جانے کتنے دنوں سے یہ آنسو، یہ باتیں اپنے دل میں دبائی بیٹھی تھی۔ آج اسے موقع ملا تھا کہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ وہ بہت روئی، اس نے بہت کچھ سمیرا سے کہا، لیکن سمیرا بھی کیا کر سکتی تھی؟ سمیرا بھی رونے لگ گئی۔ سمیرا نے بولا کہ میرے ابا کو نہیں معلوم کہ میں آپ کے گھر آئی ہوں، لیکن امی سے پوچھ کر آئی ہوں۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں تمہیں اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی ہوں۔ نگینا نے ایک آہ بھری اور بولی کہ ٹھیک ہے۔ سمیرا کی طرف دیکھا جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ کسی طرح اس کو اس گھر سے باہر لے جائے، لیکن سمیرا بیچاری بھی کیا کر سکتی تھی۔ سمیرا جب نگینا کے گھر سے باہر نکل رہی تھی، نگینا
नगीना का अब्बू घर में दाखिल हो रहा था। सुमेरा ने सलाम ली तो उस नगीना के अब्बा ने सुमेरा के सर पर हाथ रखा। सुमेरा ने बहुत ही जुर्रत से नगीना के बाप को बोला कि आप नगीना को मेरी शादी पर जरूर बेचिएगा, जो भी हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं। ये कहकर जल्दी से सुमेरा अपने घर को चली गई। नगीना के बाप ने नगीना को घर आकर कुछ नहीं कहा। उस हादसे के बाद नगीना की बड़ी पुप्पी घर में कुछ ज्यादा ही चक्कर लगाने लग गई। इसी दौरान नगीना की पुप्पो ने नगीना के कमरे में सुमेरा की शादी का कार्ड देख लिया और समझ गई कि अब नगीना शादी पर जरूर जाएगी और शादी पर तैमूर भी आया होगा। उन्होंने नगीना के कान भरने चाहे ताकि तैमूर के खिलाफ नगीना को कर सके। नगीना ने गुस्से से बोला कि मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं, आप कौन होती हैं मेरी जिंदगी के फैसले लेने वाली। तब उसकी पुप्पो रक्षंदा को उस पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नगीना के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। नगीना की पुप्पो रक्षंदा ने बोला कि आज तक उसके बाप की जरूरत नहीं हुई कि वो उसके आगे इस तरह बोले और वो इस तरह बदतमीजी कर रही है। नगीना अपनी पुप्पो से झगड़ने लग गई। उसके बाद नगीना का अब्बू शोर सुनकर आया और दोनों को चुप करवाने लगा। क्योंकि नगीना की पुप्पो अच्छी तरह जानती थी कि सुमेरा की शादी किस दिन है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इन्हीं दिनों में नगीना के घर रहेंगी। लेकिन उन्हें अचानक अपने घर वापस जाना पड़ा। सुमेरा की मेहंदी वाले दिन नगीना के बाप ने उसे बोला कि क्या वो शादी पर जाना चाहती है। नगीना ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हुई और उसने कहा कि जी अब्बा। तो नगीना के अब्बा ने कहा कि ठीक है, वो चली जाए। नगीना ने जल्दी से तैयारी की और वो मेहंदी पर चली गई। उधर नगीना की पुप्पो रक्षंदा को पूरा यकीन था कि नगीना जरूर शादी पर जाएगी, इसलिए वो हर सूरत नगीना के घर उसी दिन आना चाहती थी। नगीना जब शादी पर गई तो तैमूर सामने खड़ा था। तैमूर ने जब नगीना को देखा तो देखता ही रह गया। एक तो उसने नगीना को इतने अरसे बाद देखा था और ऊपर से नगीना बहुत ही प्यारी लग रही थी। दोनों का जी चाह रहा था कि दोनों एक दूसरे को अपनी आंखों में बंद कर लें, ये वक्त ही ठहर जाए। लेकिन ये जालिम माशरा और ये वक्त कहाँ किसी का साथ देता है। नगीना 2 घंटे बाद अपने घर को वापस जाने लगी तो सुमेरा ने कहा कि तैमूर भाई तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, वो तुम्हारा छत पर इंतजार कर रहे हैं। सुमेरा की ये बात सुनकर नगीना हैरान रह गई। उसने बोला कि ये कैसे मुमकिन है, अगर किसी ने उसको छत पर जाते हुए देख लिया तो तमाशा बन जाएगा। सुमेरा ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। सुमेरा ने नगीना का हाथ पकड़ा और उसे छत पर ले गई। किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि सब मेहंदी की तकरीब खत्म होने के बाद अपने अपने बिस्तर की तलाश में लगे हुए थे। सुमेरा ने नगीना का हाथ तैमूर की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि भाई बात कर लो, मैं थोड़ा दूर खड़ी हूँ क्योंकि मुझे नगीना को साथ लेकर नीचे जाना है। अगर ये अकेली गई तो लोग बातें बनाएंगे। इधर नगीना इससे पहले कुछ बोलती तैमूर ने कहा कि नगीना मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्ही से शादी करूंगा। अगर मेरी तुमसे शादी ना हुई तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। और उसने नगीना को कहा कि तुम भी मेरी होकर रहना, मुझसे कभी बेवफाई मत करना। इससे पहले कि नगीना कुछ बोलती सुमेरा ने चीख कर कहा नगीना तुम्हारी पुप्पो आ गई। नगीना के पैरों तले तो जमीन निकल गई। सुमेरा ने जल्दी से नगीना का हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले गई। घर में चूंकि काफी मेहमान थे इसलिए नगीना की पुप्पो को मालूम नहीं हुआ कि नगीना कहाँ थी। नगीना जब जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी तो उसकी पुप्पो ने देखा और बोली कि तुम किधर थी। नगीना उनकी आवाज को अनसुनी करके बाहर निकल गई। नगीना की पुप्पो भी जल्दी से नगीना के पीछे निकल पड़ी और घर में आते ही तमाशा बर्पा कर दिया कि नगीना क्यों शादी पर गई और उसने अपने भाई को भी काफी कुछ सुनाया। दोनों में काफी झगड़ा शुरू हुआ। नगीना का बाप दोनों के दरमियान पिस रहा था। नगीना के बाप ने सिर्फ इतना कहा कि नगीना बच्ची है, तुम इस पर इतना गुस्सा मत करो। और नगीना पर तो आज अपनी पुप्पो की किसी बात का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि इसके कानों में तो तैमूर की मोहब्बत भरे अल्फाज गूंज रहे थे कि तैमूर उससे कितनी मोहब्बत करता है। नगीना अब तो अलग ही दुनिया में रहने लग गई, अगले दिन से अनजान। लेकिन इधर अब उसकी पुप्पो का गुस्सा और भी बढ़ गया जब उसने देखा कि उसका भाई अपनी बेटी की वजह से उसके आगे बोला है। नगीना की पुप्पो ने अपनी दोनों बहनों को भी बुला लिया। नगीना की पुप्पो ने सुबह होते ही तमाशा लगा दिया
कि नगीना शादी में शिरकत नहीं करेगी, लेकिन नगीना ने कहा कि वो हर सूरत शादी पर जाएगी। तो नगीना के अब्बू ने कहा कि ठीक है, उसकी पुप्पो भी नगीना के साथ शादी वाले घर में चली जाए। तो उसकी पुप्पो ने कहा कि ठीक है। अगरचे तैमूर के घर वाले नगीना की पुप्पो को देखकर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन ये गुस्सा उन्होंने अपने अंदर ही रखा, क्योंकि वो नगीना और तैमूर को हर लिहाज से खुश देखना चाहते थे। नगीना की बड़ी पुप्पो की वजह से नगीना तैमूर और सुमेरा से कोई बात न कर सकी। शादी की तकरीब खत्म होते ही नगीना की पुप्पो ने उसको जल्दी से घर वापस जाने के लिए कहा। नगीना अपनी पुप्पो के साथ घर वापस चली गई। नगीना की दोनों पुप्पियां भी आ चुकी थी। नगीना शाम को अपने कमरे में चली गई। नगीना के कमरे में रात के 10 बजे उसकी दरमियान वाली पुप्पो दाखिल हुई और उसके साथ ही उसकी छोटी पुप्पो भी आ गई। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। नगीना की पुप्पो ने नगीना को बोला, हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम हमें अपना दुश्मन मत समझो। इसके साथ ही उन्होंने नगीना को मिठाई खिलाना चाहिए। नगीना ने कहा कि उसका दिल नहीं कर रहा कुछ भी मीठा खाने को और टाइम भी काफी हो चुका है। इतने में उसकी एक पुप्पो ने नगीना का मुंह पकड़ा और दूसरी पुप्पो ने जबरदस्ती उसके मुंह में लड्डू ठूंस दिया, क्योंकि लड्डू में जहर था। नगीना की हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी तो उसकी बड़ी पुप्पो भी कमरे में दाखिल हो गई। तीनों उसकी मौत का मंजर देख रही थी। नगीना ने जब शोर करना चाहा तो उसकी पुप्पो ने कहा कि उसके अब्बू को उसकी आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि उसके अब्बू सो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसके अब्बू को चाय में नींद की गोली दी थी, इसलिए वो आराम से सो रहे हैं। अब अगर नगीना चिल्लाए भी तो किसी को आवाज नहीं जाएगी। नगीना की आंखों में बहुत आंसू आ रहे थे। उसे अपनी माँ याद आ रही थी और उसके साथ ही तैमूर की बातें याद आ रही थी। अपनों की असलियत जानकर इंसान तो अपनी मौत से पहले ही मर जाता है। नगीना को तड़पता हुआ देखकर उसकी पुप्पो रक्षंदा बोली कि तुम्हारी माँ भी ऐसे ही मरी थी, वो भी बहुत बोली गाई थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और नगीना ने तड़प तड़प कर जान दे दी। उसके बाद उसकी पुप्पियों ने सुबह के होने का इंतजार किया ताकि किसी को उन पर शक ना हो। सुबह होते ही नगीना की पुप्पियों ने घर में शोर मचा दिया कि नगीना ने खुदकुशी कर ली। शोर सुनते ही नगीना का जल्दी से बाहर भागा। जब उसने देखा कि ये शोर नगीना के कमरे से आ रहा है तो वो नगीना के कमरे में भागा। जब उसने देखा कि उसकी बेटी की लाश पड़ी है तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इसी तरह उसकी बीवी भी मरी पड़ी थी। तब उसको यकीन हो गया कि लोग सही कहते थे कि उसकी बीवी को भी उसकी बहनों ने ही मारा है और आज उसकी बेटी भी उसकी बहनों की बीट चढ़ गई। वो बहुत रो रहा था। इधर सारे गांव में ये बात पता चल गई। जब तैमूर को ये खबर मिली तो तैमूर के घर में कहराम मच गया। तैमूर दीवानों की तरह चीखने लगा और गलियों में दौड़ता हुआ नगीना के घर की तरफ चला। तो उसके अब्बा ने उसे पीछे से रोका कि बेटा तुम इस तरह नगीना के घर मत जाओ, वरना लोग मरी हुई नगीना को भी नहीं बख्शेंगे। तैमूर ने कहा कि अब्बा आज मुझे मत रोको, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नगीना खुद नहीं मर सकती, उसे मारा गया है। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे नगीना को एक दफा देखना है। जब तैमूर की बात उसके बाप ने सुनी तो उसने अपने हाथ तैमूर से पीछे हटा लिए। तैमूर दीवानों की तरह चीखता हुआ नगीना के घर जब पहुंचा तो उसकी दहलीज में ही गिर गया। जब नगीना की पुप्पियों ने तैमूर को देखा तो वो भागती हुई दरवाजे में आई और बोली कि तुम घर में दाखिल नहीं हो सकते, तुम्हारी वजह से ही नगीना ने खुदकुशी की है। तब नगीना के बाप ने गुस्से से बोला कि इसे अंदर आने दो। नगीना ने खुदकुशी नहीं की, मेरी बेटी ने अपनी जान नहीं ली, तुम लोगों ने उसे मारा है और ये सब तुमने अब जायदाद हासिल करने के लिए किया है। तुम कैसी बहनें हो, बहनें तो अपने भाइयों पर जान मारती हैं और तुम लोगों ने मेरी बेटी और मेरी बीवी की जान ली है। उसके बाद नगीना की तदफीन कर दी गई। और नगीना के अब्बा ने ये वसीयत करवा दी कि उसके मरने के बाद सारी जायदाद मदरसे और मस्जिद के नाम कर दी जाए, उसकी बहनों को कुछ भी हिस्सा ना मिले। वो चाहता तो नगीना की पुप्पियों को जेल में भी करवा सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। उसके बाद नगीना का बाप काफी बीमार रहने लगा। नगीना के फौत होने के 1 साल बाद नगीना का बाप भी फौत हो गया। नगीना की मौत के बाद तैमूर
اب گاؤں میں بہت کم آتا ہے۔ تیمور ہر سال نگینا کی برسی پر ضرور آتا ہے اور قبرستان میں جا کر بہت روتا ہے۔ وہ قبرستان سے جب لوٹتا ہے تو غم سے بہت نڈال ہوتا ہے، گویا وہ بہت رو کر آیا ہو، جیسے اس نے سارے سال کے آنسو آج ہی بہائے ہوں۔ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا، نگینا کو نہ ہی وہ بھولنا چاہتا ہے اور شاید نہ ہی بھولے گا، جبکہ نگینا کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ ازل سے محبت کی دشمن ہے دنیا، کبھی دو دلوں کو ملنے نہ دے گی۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔